પણ લક્ષ તો મકાન ઉપર છે. રાત્રે પિતા પુત્ર બેઠા હતા કઈ પિતાજી કે અત્યારે મકાન જણાતા નથી કે દિવસ તો જણાય છે કે સવારે ઉગે ને દિવસ ત્યારે કહીએ મને શું જણાય છે એમ તો રાત્રે જણાતા નથી દિવસ ઉગે તો મકાન જણાય. સવારે વાત કરીએ સવારે ઉઠ્યા બોલ હવે શું જણાય છે? હવે મકાન જણાય છે. મકાન મકાન ને મકાન. ઓલો પિતા કે સૂર્ય સૂર્ય ને સૂર્ય બેનો પેડે મોટો વાંધો. પછી પછી પિતાજી કે જો રાત્રે મકાન નતું જણાતું બરાબર છે તો ઠીક કબૂલ રાત્રે મકાન નતું જણાતું દિવસ ન જણાનું તો દિવસ ઉગ્યો તો દિવસ તને જણાય છે કે મકાન જણાય છે? કે હા બચક ખાધી જરા કે નહીં. વાત તો સાચી છે બાપજી. તો હવે પ્રકાશ જણાય છે કે મકાન જણાય છે? કે પ્રકાશ પણ જણાય છે ને મકાન પણ જણાય છે. બાપુજી બે જણાય છે. ઉભો રે હજી વાર છે. ઉભો રે હજી ઉભો રે. મકાન પણ જણાય છે અને પ્રકાશ પણ જણાય છે. તો તારું લક્ષ્ય અત્યારે પ્રકાશ ઉપર છે કે મકાન ઉપર? કે મારું લક્ષ્ય તો પ્રકાશ ઉપર છે. હવે જો લક્ષ્ય ફેરવ મકાન ભલે રહ્યું પ્રકાશ પણ ભલે રહ્યો લક્ષ્ય ફેરે જરાક. હું તને કહું છું કે મકાન જણાતું નથી મકાન ઉપરથી તારો ઉપયોગ હટાવી લે અને પ્રકાશમાં લઈ આવે. બાપુજી પ્રકાશ જણાય છે મકાન હવે જણાતું નથી. તો પ્રકાશ જણાય છે તો પ્રકાશ ક્યાંથી આવે છે? કે પૂર્વ દિશામાંથી. જરાક આગળ જો ને. હા તો સૂર્ય દેખાઈ ગયો. હવે સૂર્ય દેખાઈ ગયો ત્યારે પ્રકાશનો ભેદ પણ ગયો દેખાવો અને મકાન પણ ગયો. વાહ 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 बहुत बढ़िया. મકાન નો દ્રષ્ટાંત દેખા એ કબૂલ કર્યું છોકરે. વાત સાચી છે. લક્ષ જરા ખેડે મારી વાત સાંભળ. તું મારી વાત સાંભળ તો મકાન ઉપરથી લક્ષ ઉઠાવી અને મકાનને પ્રસિદ્ધ કોણ કરે છે કે બાપુજી તો સૂર્યનો પ્રકાશ. તો સૂર્યના પ્રકાશ ઉપર લઈ જઈએ એકવાર કે હા પ્રકાશ જણાય છે. હવે સૂર્ય જણાતું નથી. પેલા કે બે જણાય છે પ્રકાશ જણાય છે અને મકાન જણાય છે. સ્વપ્રકાશમાં આવ્યો. ઓલા બાપુજી તો અનુભવી હતા. બરાબર. કે તારું લક્ષ્ય એક ઉપર છે કે બે ઉપર? એ શું કે લક્ષ તો એક ઉપર લક્ષ તો એક ઉપર હોય કે મકાન ઉપર જણાય છે? મકાન જણાય છે. જે જણાય છે એના પર લક્ષ છે. જે જણાતું નથી પ્રકાશ એના પર લક્ષ નથી. હા નથી. તો હવે લક્ષ કરે જરાક જો મકાનને તું ગમ કર અને પ્રકાશ જોવા મળે. હા બાપુજી હવે મકાન જણાતું નથી. હવે તો પ્રકાશ 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 જણાય. હવે જયારે આગળ હોય એ ભેદ કેનો છે? અભેદનો છે. સૂર્યના દર્શન થઈ ગયા મને. એમાં ચૈતન્ય સૂર્યના દર્શન થઈ જાય. જો સ્વપર પ્રકાશકનું લાકડું અને પર પ્રકાશકનું લાકડું કાઢે તો મોટો મિથ્યાત્વ છે. મોટો મિથ્યાત્વ છે. સાધારણ મિથ્યાત્વ નથી. સ્વપર પ્રકાશકના નામે અને અનેકાંતના નામે સ્વપર પ્રકાશકના નામે જૈન ના સાધુઓ પણ હારી ગયા. ત્રિવેલી મુનિ પણ આમાં ભૂલખાય છે. આ સાધારણ નથી. સ્વપર પ્રકાશકની વાત એ કોયડો છે. પેલું સ્વપર પ્રકાશક અજ્ઞાનમય હતું. પછી સ્વપ્રકાશક સમ્યક જ્ઞાન. પછી અંદરનું સ્વપર પ્રકાશક સમ્યક જ્ઞાન. નિશ્ચય બે નિશ્ચય સ્વપ્રકાશક નિશ્ચય ને સ્વપર પ્રકાશક નિશ્ચય અને પછી સ્વપર પ્રકાશક વ્યવહાર પર સમ્યક જ્ઞાન. પેલું અજ્ઞાન હતું. બરાબર. પેલા જ્ઞાનીનું કેવું હતું? જ્ઞાની ફરી જાણે છે ત્યારે સ્વપર પ્રકાશક જણાય છે એ એનો નિશ્ચય અને પછી કે છે બધું જણાય છે. લોકાલો કઈ જણાય છે? સ્વપર પ્રકાશક બરાબર છે જણાય છે પણ જાણતો નથી. લક્ષ નથી ના પણ દર્પણ તમે દર્પણની સામે જો છો દર્પણ જણાય છે ને કે દર્પણ પણ જણાય છે ને બીજી વસ્તુ પણ જણાય છે. એમ બે જણાય છે. એમ છે ને બે તો જણાય ને કે એક જ દર્પણની સામે
દર્પણની સામે જોતા દર્પણે જણાય અને અગ્નિનો પ્રતિભાસ થાય તો અગ્નિ જણાય, બે જણાય ને. દર્પણ જણાય ને અગ્નિ જણાય. અગ્નિનો પ્રતિભાસ તિરોભાવ થાય છે. બરાબર. અગ્નિનો પ્રતિભાસ તિરોભાવ થાય છે અને સામાન્યનો આવિર્ભાવ થાય છે. મને બીજું કઈ જણાતું નથી. વાહ. આમાં અનુભવ થાય છે. बराबर बहुत बढ़िया। वो जो वस्तु है उसकी सफेदी उसी के पास है या वो सफेदी कभी उसे च्युत हो जाती है? क्योंकि वस्तु स्वभाव कभी अपना स्थान छोड़ता नहीं है, बदलता नहीं है। तो सफेदी जो पुद्गल का स्वभाव है वो तो पुद्गल के पास रहती है या वो सफेदी ज्ञान में आती है? समस्या तो बहुत गंभीर हो गई है। हमने तो सीधा सा जाना था कि ज्ञान देख ले, जान ले उसमें क्या है। आसमान की तरफ झांके तो आसमान दिख जाता है, सामने देखता है तो सामने कोई पदार्थ है वो दिख जाता है। कहते हैं ये पूरा का पूरा भ्रम है। 10 गाथाओं में क्या कहा, और सीधी सीधी लगती हुई भी गंभीरता कितनी है कि कहा जाता है कि ज्ञान घटपट आदि को प्रकाशित करता है। हाँ करता है, ठीक है, कि जिस समय प्रकाश होता है तो उस समय घड़ा दिखाई देता है, और प्रकाश नहीं होता तो घड़ा दिखाई नहीं देता। दोनों बातें सच्ची हैं या नहीं? ये दोनों ठीक है। अब उसका विश्लेषण कि जिस समय प्रकाश नहीं था और घड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय घड़े का क्या हुआ? प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया, ये हमारा बोल और ये हमारा मानना, ठीक है, इसको रखकर चले। अच्छा, अब प्रकाश नहीं है और घड़ा दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ घड़े का? वो जो घड़ा लाल था, गोलाकार था, और जो कुछ भी था कम्बुग्रीवादिमान, न्याय शास्त्रों में तो ऐसा कहा, कछुए कैसे आकार वाला, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कि तो घड़ा ही है। और जिस समय उस प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया, ये जो हमने उपाधि लगाई उस घड़े को, उस समय तो उपाधि नहीं लगी। इस समय क्या उपाधि लगाई? कि प्रकाश की उपाधि घड़े को लगाई, और ये कहा कि इस प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया। अच्छा, कर दिया प्रकाशित, ठीक हुआ। क्या हुआ घड़े का? घड़ा जब प्रकाशित हुआ तो घड़े का क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मैंने घड़ा पहले अंधकार में था, ठीक हुई बात, और अब घड़ा प्रकाशित हुआ तो एक काम हुआ ना घड़े में, नहीं हुआ? पहले घड़ा प्रकाशित नहीं था, अब घड़ा प्रकाशित हुआ, घड़ा प्रकाशित हुआ तो घड़े में एक काम हुआ कि नहीं प्रकाशित होने का? तो प्रकाशित होने पर घड़े में क्या काम हुआ, ये पूछना है, ये है प्रश्न। कि कुछ भी नहीं हुआ, वो तो घड़ा जो अंधेरे में था वही प्रकाश में। तो फिर ये घड़े का प्रकाशित होना क्या कहलाता है? किसको कहते हैं हम घड़े को प्रकाशित होना? कि सचमुच जो प्रकाश है वो घड़े को प्रकाशित क्या करेगा, उसका घड़े से संबंधी क्या है? तो फिर वो क्या करता है कि जो प्रकाश है वो तो प्रकाश ही करता है, वो और क्या करेगा? उसके पास घड़ा कहाँ है जो उसे प्रकाशित करेगा? वो तो प्रकाश ही करता है। तो ये जो जिस समय अंधकार था और उस समय घड़े पर प्रकाश नहीं था, इस समय घड़े पर चारों ओर प्रकाश है। ये चारों ओर जो प्रकाश है घड़े पर, और ये प्रकाश ठीक घड़े के आकार हो रहा है प्रकाश के आकार, वो आकार प्रकाश का ही है, घड़े का नहीं है। लेकिन फिर भी कहने में दिक्कत नहीं, समझने के लिए कहना पड़ेगा कि इस समय इस प्रकाश का आकार घड़े जैसा है, ये हुआ। अब वो जो प्रकाश घड़े के आकार है
और घड़े पर हमें जो चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है, तो वो सबका सब क्या है? घड़ा है या प्रकाश है? कि तो प्रकाश है। और घड़ा उस प्रकाश से बिल्कुल भिन्न है, न्यारा है। तो जो घड़ा प्रकाश से बिल्कुल भिन्न है, और घड़े में प्रकाश से कोई संबंध नहीं है घड़े का, और प्रकाश का घड़े से कोई संबंध नहीं है, तो हमने ये जो प्रकाश के साथ घड़ा लगाया, प्रकाश अकेला है, घड़ा रहित सदा ही। अब हमने क्या किया कि उसके साथ घड़े को और लगाया, तो क्या ये प्रकाश घड़े को लिए लिए फिरेगा? लग जाएगा घड़ा इसके साथ, तो क्या होगा कि सचमुच तो जिसे हम ये कहते हैं कि वो घड़ा प्रकाशित हो रहा है, तो वो घड़ा प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़ा प्रकाशित हो तो घड़े में कोई काम नया होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए स्पेशल, कि जिस समय वो प्रकाशित नहीं था उसकी अपेक्षा अभी उसमें कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशित हुआ है घड़ा प्रकाशित हुआ है। तो घड़ा प्रकाशित हुआ तो कोई नया काम हुआ ना घड़े में। तो क्या हुआ नया काम? जरा तोल करना उसका, जरा उसका माप करना, जरा उसका कलर देखना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो फिर कहाँ प्रकाशित हुआ वो? तो फिर ये सब क्या है? ये जो घटाकार सा दिखाई देता है, घड़े के आकार दिखाई देता है, ये सब क्या है? कि प्रकाश ही प्रकाश है, दीपक ही दीपक है, और कुछ नहीं है। और घड़ा उससे बिल्कुल न्यारा ही पड़ा है। जिस समय हमने घड़े को प्रकाशित होना कहा, तो उस समय भी घड़ा और प्रकाश ये दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे ही थे। तो वे घड़े का प्रकाशित होना क्या कहलाता है? कि सचमुच तो ये जो प्रकाश का घड़े जैसा आकार दिखाई देता है, घड़े जैसा आकार, ये घड़े जैसा आकार, इसको घड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस प्रकाश का आकार विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। तो इस समय इस प्रकाश का आकार कैसा है? कि इस प्रकाश का आकार घड़े जैसा है। तो ये बताने के लिए कि प्रकाश का आकार कैसा है, हम उसके साथ घट लगाते हैं, लेकिन प्रकाश के साथ घट कभी लगता नहीं, न्यारा ही रहता है। और वह प्रकाश जो घड़े के आकार होता हुआ बिल्कुल प्रकाश ही है, शुद्ध प्रकाश ही है, घड़े से उसमें कुछ आया नहीं है, और प्रकाश ने घड़े को कुछ दिया नहीं है। अगर प्रकाश घड़े को प्रकाशित करता तो प्रकाश घड़े को कुछ देता, तो उसे कुछ मिलना चाहिए था, और कुछ मिला नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था यह है कि वो प्रकाश का जो एक स्वरूप है लचीला, कि जो वस्तु होती है तो वो प्रकाश उसके आकार अपने आप ही होता हुआ, अपने आप ही, घड़ा उसे नहीं करता है, घड़ा उसे अपने आकार बनाने आता है, या अपने आप ही वो उस आकार होता है। और वो जो घड़े जैसा आकार है उसका प्रकाश का उस समय, क्योंकि अन्य समय वो नहीं रहेगा, अन्य समय वो दूसरे प्रकार का हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकाश के आकार को हम घट का आकार अथवा घड़ा भी कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मानने में पूरी की पूरी आपत्ति है कि वो न तो घड़े का आकार है और न वो घड़ा है।